Hello everyone, how are you all? I hope you all are staying strong at your home. Today we will start a new chapter, chapter 8. Let us enjoy. The minute the bell rings for the lunch break in the school, the children finish their lunch quickly. They rush to the playground with bat, ball एंड बैडमिंटन रैकेट्स. सो ये वो सिनेरियो है जो आप सबने देखा होगा जब आप स्कूल में होते हो. तो जैसे ही लंच ब्रेक होता है तो बच्चे अपना फटाफट जल्दी जल्दी अपना लंच फिनिश करते हैं और अपना बैडमिंटन रैकेट या अपनी बैट बॉल लेकर के दे रश मतलब इन हेस्ट और बहुत जल्दी या हड़बड़ी में सबके सब निकल जाते हैं प्लेग्राउंड की तरफ. Many children go to the swings and eat their tiffin while waiting for their turn. बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाएंगे ग्राउंड में जहाँ पे स्विंग्स लगे होते हैं, वहाँ पे वो अपनी टर्न का भी वेट करेंगे एंड साइड बाय साइड जो है वो अपना लंच भी फिनिश कर लेते हैं. Some children read story books and some exchange their books with their friends. और वो आपस में बुक्स भी एक्सचेंज करते हैं and they do reading also. School is great fun, but the lunch break is the favorite time of the children. Everyone relaxes and gets ready for the work ahead. The tension and tiredness goes away. The mind and body is filled with a new energy for the work ahead. तो स्कूल में लंच ब्रेक जो होता है वो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट टाइम होता है क्योंकि उस वक्त वो रिलैक्स करते हैं, मेंटली उनकी जो टायर्डनेस होती है वो चली जाती है और वो न्यू एनर्जी से फिल हो जाते हैं फॉर द अपकमिंग क्लासेस. At home, the playtime of children starts in the evening. After finishing their homework, many children go to the sports complex or the park to play with their friends. जब बच्चे घर वापस जाते हैं तो शाम के वक्त वो अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद दे स्टार्ट प्लेइंग. वो उनका लेजर टाइम होता है, वो उनका वो टाइम होता है जब वो एंजॉय करते हैं. उसके लिए बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा जो स्पेशली वो बच्चे जो प्रोफेशनली अपनी जो उनका इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसको परस्यू करना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, या फिर पार्क में जाते हैं खेलने के लिए. सम चिल्ड्रन set up a Scrabble or carom board in the veranda and the fun starts. Children also enjoy building models of aircrafts, cars or making painting. There are many children who write poem or sing song in their free time. Both the children and parents look forward to the school holidays to visit different places of interest or to meet relative living far away. So छुट्टियां ऐसी चीज है, वेकेशंस ऐसी चीज है जिसका इंतजार सिर्फ बच्चों को नहीं होता है, पेरेंट्स को भी होता है, so that they can visit their relatives या फिर कहीं पे वो घूमने जा सकें. So many leisure time activities become full time occupation when the children grow up. जब बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत सारे ऐसे उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनकी leisure time activities होती है जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फुल पोटेंशियल दे करके प्रैक्टिस किया होता है, वो उसको अपना करियर भी बनाते हैं. A child who loves to write may become a writer or a news reporter. A child who is fond of building models may become an engineer. Right? If you want to become a sports person, you have to start your training as a child. See, अगर आप बड़े होकर के एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, which includes everything: a disciplined routine, physical activity, lot of physical activity, lot of practice, even the control over the feeding habits also. So many great sports personalities in the world had started playing with particular sports as a leisure time activity in their childhood, and later on they pursued the same as their career. Do you know indoor games are played inside a building and outdoor games are played in open spaces? As the name indicates, indoor मतलब डोर के अंदर and outdoor means outside the door. So indoor जो डोर के अंदर यानी कि घर के अंदर खेली जाती हैं, एंड आउटडोर मीन्स आउटसाइड द डोर जो बाहर ग्राउंड में या ओपन स्पेसेस में खेली जाती हैं. सो लेजर टाइम इज
important not only for children but also for grown up. Many grown up people go to play basketball, volleyball, cricket, chess, cards and exchange music programs with their friends and families. सो लेजर टाइम एक्टिविटी सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, बड़े लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये वो टाइम होता है जब लोग जो है अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं, अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ या जो भी उनकी शौक होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनको परस्यू करते हैं. Some women knit or embroider together. They also love to exchange recipes. Right? Some people read books and enjoy watching movie. Some people like to do exercises, cycling or yoga, and going to gymnasiums are popular with health conscious people. आप देखेंगे इवनिंग में बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स इवनिंग में जिम जाना पसंद करते होंगे. अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में वो जिम पक्का जाते होंगे. सो दे आर द हेल्थ कॉन्शियस पीपल. It is important that everyone follows some leisure time activity. It is very important. हर किसी को कोई ना कोई leisure time activity follow करनी चाहिए, चाहे वो reading newspaper है, books है, household jobs है, morning और evening walk है, listening to radio, watching television. ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वर्ल्ड दुनिया से कनेक्ट करती है. आउटसाइड वर्ल्ड जो है, डिफरेंट कंट्रीज जो है, उनसे कनेक्ट करती है. गार्डनिंग, इट फ्रेशेस आवर माइंड. गॉसिपिंग विद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, सिंगिंग भजन्स, इनवाइटिंग फ्रेंड्स एट होम एट्सेट्रा, ये सब क्या करती हैं, हमें स्ट्रेस से भी दूर रखती हैं. सो लेजर टाइम एक्टिविटीज कीप्स अस बिजी फिजिकली एंड मेंटली एंड दे ब्रिंग जॉय इन आवर लाइव्स. सो बेसिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये हमारी लाइफ में जॉय लेकर के आती हैं, खुशियाँ लेकर के आती हैं. सो हियर this is an example. Mr. Suraj Manchanda, he's a retired bank manager and he had a lot of time on his hand क्योंकि वो retired हो गए हैं, अब उन्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है. So he realized many other old people had a lot of time. उन्होंने देखा कि और भी बहुत सारे ओल्ड पीपल्स होते हैं जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता है, लेकिन उनके पास ना तो फ्रेंड्स हैं और ना ही कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की चीज़ है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एल्डरली फॉर्म जो है वो ऑर्गेनाइज किया. इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं ये ज्वाइन करते हैं ग्रुप में और ये रेगुलरली पिकनिक पे जाते हैं, एक्सकर्शन पे जाते हैं. टुगेदर दे यूज टू गो फॉर अ फिल्म एंड लेक्चर्स और सेमिनार्स, सोशल इशू पे लेक्चर्स और सेमिनार अटेंड करते हैं. दे सी हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. और म्यूजिकल इवनिंग रखते हैं जिससे इनको क्या होती है, खुशी मिलती है, विच ब्रॉट लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन टू द लाइफ्स ऑफ मेनी ओल्ड पीपल. So this was all about the chapter. Let us enjoy. Bye bye. Take care.